ECEL was my redemption from the college life. So yeah, ECEL has a special place always. कॉलेज में फर्स्ट स्टार्टअप आइडिया वो कैसा है और मोर देन दैट आइडियाज आते हैं राइट एवरी आइडिया इज वर्थ $1 billion वी ऑल नो दैट बट एग्जीक्यूशन नहीं होता राइट सो फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वेयर दैट इज वेयर मोस्ट फाउंडर्स फेल ब्रांड बोलते हैं कि एक दिन किसी ने ऐसे रैंडमली पूछा आप वेबसाइट भी करते हो क्या, हमको वेबसाइट चाहिए. मैंने कहा आप एक हफ्ता दो मेरे को, मैं बताता हूँ आपको वेबसाइट का हो जाता है. बी पेशेंट विद रिजल्ट्स बट बी अनपेशेंट विद एग्जीक्यूशन. मतलब वहाँ पे Sometimes seniors could be the most valuable mentors you could find in the start of your career. One such founder, entrepreneur, come senior, Yuvraj Aditya Arya will be joining us on this episode. He is the founder of the Opportunities Portal and the ex-head of research at ECEL VAT. This part is mainly directed towards his journey and how did he start a startup in the college. Enjoy the episode. The podcast is started, so now we will change our language to English, right? नहीं we'll keep it हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना, मेरे को मिक्स रखेंगे. एंड मोर ओवर जहाँ पे कॉर्पोरेट में ज़रूरत नहीं होती ना, आई प्रेफर हिंदी. हिंदी में दिल की बात निकल के आती है बाहर. हाँ, गुजराती आती ना मेरे को, मैं गुजराती में करता. कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद ऐसा हो जाता हूँ दैट आई स्पीक बट बीच बीच में गुजराती आ जाता है क्योंकि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं हो पाती. थोड़ा बहुत गुजराती समझते हैं. सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आप जो है इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. अच्छा. नॉट अ गुड वन लाइक वी डोंट वांट टू नो ओके क्या जस्ट योर नेम व्हाट आर यू देन विल डाइव डीप इनटू यू सो द ऑडियंस विल नो इट देमसेल्व्स. For sure. Hi everyone, I'm Yuvraj. The full name is Yuvraj Aditya Arya and I was क्या बोलूँ इसके आगे. If we start again, I'm Yuvraj Aditya Arya and I'm from Haridwar. Basically, right now I'm staying in Bangalore working on my startup and any time up for Harry Potter trivia, that is my go-to place. Yeah, that's it. So first of all, like to know that okay, how I would like to share this story how we met, right? So you may not know this, but I started the podcast and थोड़े टाइम बाद मुझे गेस्ट चाहिए था. अच्छा. गेस्ट नहीं मिल रहे थे. So मेरा दोस्त है राजकोट से ही है मनन, ठीक है, and he was the he is right now the operational head of ECEL. Right, so he's my school friend. I told him that okay, I want some guest. He told that Yuvraj bhaiya. I told, okay, who is he? He sent your LinkedIn. देखा, I was like okay, he's good to go. Like मतलब देख के तो लग रहा है सही है. So I texted you on your website, right? And then you called me to the blog. That's how I came to know. अच्छा. So it was like just I wanted some guests and I came to you. But now I think that you are one of the mentor whom I seriously look upon to and get inspired from you. And moreover, not only me, but in VIT, our batch, juniors, everyone gets inspired. Right? In our ECEL meetings, we frequently hear your name. अच्छा. Not boasting up, really. That's good to hear. ECEL has been a very big part of my college journey and still remains to be a very important part of what startup culture VIT is trying to build. And as I say, as I often quote that ECEL was my redemption from the college life. So yeah, ECEL has a special place always. So, did you join ECEL just for the sake of joining, or did you know that this is going to be something which is going to change it? अच्छा, तो सीना it is around October 2020, ठीक है ना. अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, सबका अभी एडमिशन हुआ है VIT में. लॉकडाउन चल रहा है 2 साल. मतलब जेई हमने दिया, उसके बाद मतलब जेई 3-4 बार डिले हुआ, जेई दिया, उसके बाद आई वाज लाइक कि यार वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ करना है. आई डिडंट, घर पे बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया था, ठीक है. ऑल्सो बीच बीच में मैंने ना थोड़ा सा 1-2 स्किल्स पिक किया था कि हाउ टू मेक यूट्यूब के वीडियोस जो है ना उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं वैसा. तो मेरे को वीडियो एडिटिंग कहाँ से आता था मेरे को ना स्कूल में आई यूज़ टू बी पार्ट ऑफ दिस एनुअल फंक्शन की जो कमेटी होती है ना, कल्चरल कमेटी, उसका पार्ट हुआ करता था, ठीक है. तो वहाँ पे मेरे को एक मेरा जो होता था डायरेक्शन का, तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग, जो पीछे बैकग्राउंड में क्या चलेगा, व्हेन द सीन इज गोइंग ऑन, तो बैकग्राउंड में क्या चलेगा, तो पूरा ऊपर जो वीडियो होता था ना वो आई यूज़ टू टेक केयर ऑफ, ठीक है. तो वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम कैमटेशिया करके एक सॉफ्टवेयर है वो सीखा वीडियो एडिटिंग का. तब मुझे कुछ एडोब कुछ नहीं पता था. तो अभी जेई 2 साल करा तो सब कुछ छूट गया था. सो आई केम बैक टू इट इन दैट 2020 के आसपास कि यार वीडियो एडिटिंग शुरू करते हैं.
एंड थोड़ा सीखते हैं, मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। मेरे को ऐसा एनिमेशन करने में बहुत मज़ा आता था, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैं ऐसा कर रहा था, तो फिर मेरे को ऐसा उस पर डाला, मैंने यूट्यूब पे डाला कि हाउ टू स्टडी एडोब प्रीमियर प्रो, ये सब डाला। फिर धीरे धीरे वहाँ पे ऐसे आने लग गया कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। एंड उसके बाद फिर किसी ने ऐसा मेंशन किया कि इससे फ्रीलांसिंग भी हो सकती है। आई सेड व्हाई नॉट, फ्रीलांसिंग अगर हो सकती है तो मैंने स्किल डेवलप किया अपना थोड़ा सा। मेरे को एडिटिंग पहले आती थी, नया सॉफ्टवेयर पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको पहले से बेसिक्स आते हैं, वो किया। तो आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट इन लाइक सर्चिंग फॉर 1.5 months। तो मेरी मदर के साइड में कोई वो बना रहा था, यूट्यूब वीडियोस उन्होंने शुरू किया था। तो मम्मी ने बताया उन्होंने कोई ऐसा मेरा बेटा है वो एडिटिंग करता है, तो बोले हाँ ट्राई करते हैं। तो फिर उनको मैंने हेल्प किया वीडियो एडिटिंग करने में। अच्छा, जब मैं कर रहा था फ्रीलांसिंग एंड ऑल, तो मेरे को आया कि यार अगर मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने उनका काम किया, उनका पूरा ऐसा ब्रांड बिल्ड हुआ। ही वेंट फ्रॉम सम 4 सब्सक्राइबर्स टू 4,000 सब्सक्राइबर्स, मेरे साथ ही पूरा उन्होंने जर्नी किया, मोनेटाइज हो गया उनका अकाउंट, ये सब हुआ। तो मैंने कहा जब मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आई यूजुअली टॉक्ड अबाउट ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग, लोगो, ये सब ना, ठीक है। एंड इस सब के बीच में क्रिस डो करके एक वो है, व्यक्ति है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ही इज़ वेरी फेमस, ठीक है। तो ब्रांडिंग के बारे में बहुत बताता है। तो वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ कि आई एम नॉट जस्ट अ वीडियो एडिटर, मैं ब्रांडिंग कर सकता हूँ। जो ब्रांडिंग की बात आई तो धीरे धीरे ये फुल वहाँ पे आया कि इसमें 3-4 चीज़ें होती है ब्रांडिंग में। इट्स नॉट जस्ट अ वीडियो आइडेंटिटी, यहाँ पे ब्रांडिंग का मतलब आपकी कोर वैल्यूज़ क्या होती है ब्रांड की, ये सब समझ में आया। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप का। मतलब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट कंसल्टिंग पीपल, नॉट जस्ट डूइंग एडिटिंग एंड ऑल स्टफ, कंसल्टिंग पीपल, ठीक है। एंड उसी के अराउंड ये ईसेल का इंडक्शन चल रहे थे, ठीक है। तो मैंने आई बिन अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल माई लाइफ, ठीक है ना। स्पोर्ट्स का ऐसा कोई क्लब मुझे दिखा नहीं, ठीक है। पता लगा ईसेल में, सॉरी VIT में ज़्यादा कुछ होता, स्पोर्ट्स का ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है क्या करें। एंटरप्रेन्योरशिप सीम्ड इंटरेस्टिंग, ठीक है। मेरे को लगा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, दिमाग लगेगा। ऑल्सो एक जो एक एक्सपो होता है, जैसे हर क्लब का एक्सपो होता है ना, एज जूनियर्स अटेंड करते हैं, तो हर क्लब ने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे ईसा का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। तो फिर आई वाज लाइक कि यस, ईसा अटेंड करना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू ईसल एज एंटरप्रेन्योरशिप सेल। मैंने कहा इट वुड बी समथिंग एक्साइटिंग, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। वैसा हुआ, बट इट वाज ऑल ऑनलाइन। सब ऑनलाइन आ गया फिर जब ऑफलाइन आए तो वाज देयर एनी डिफरेंस, और डू यू फील दैट बीइंग ऑनलाइन वाज अ boon for you or sort of disadvantage for you? So online we stayed from 2020 to 2022, right? मतलब मई 2022 we came to campus, पूरा 1 साल ऑनलाइन, पूरा 1-1.5 साल ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन वाज द डिफॉल्ट, द न्यू नॉर्मल फॉर अस। तब तो ऐसा नहीं पता था कि, तब हम यही एंजॉय करने लग गए। क्लासेस सबको पता है कैसे कल सब क्लासेस गए, सबने एग्जाम कैसे पास करे, सबको पता है। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। मुझे तो सबसे बढ़िया ऑनलाइन का लगता था कि आई फिगर्ड आउट, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था इसलिए कि मतलब आई जनरली हैड इंक्लिनेशन टुवर्ड कंप्यूटर्स, जाना जाता था, टेक्नोलॉजी अच्छी लगती थी। बट सून आई फिगर्ड आउट कि जो सिलेबस में पढ़ाते हैं और जो एक्चुअल में बाहर हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो मुझे बस ऑनलाइन का ये अच्छा लगता था कि वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, ठीक है, टू डू समथिंग बियॉन्ड द सिलेबस। उसमें मैंने बहुत अपस्किल किया, बहुत मस्ती भी करी, अपस्किल भी करा, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करी, कुछ चीज़ें आधी सीखी, कुछ चीज़ें पूरी सीखी, कुछ चीज़ों में अपना हाथ मारा, ऐसा बीच में 2 स्टार्टअप शुरू किए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों का करने का टाइम मिला ना, तो वो चीज़ ऑनलाइन में बढ़िया था। ये सब चीज़ ऑफलाइन में कम टाइम मिल पाता है। सो आई वुड से ऑनलाइन वॉज अ गुड पार्ट फॉर मी। मतलब ऑफकोर्स उस वक्त देश में जो भी चल रहा था, वैक्सीन, कोविड वैक्सीन एंड एवरीथिंग, वो मतलब दैट मेरी मदर खुद एक डॉक्टर है एक्चुअली। तो घर में तो ऐसा पूरा, शी यूज टू गो टू अटेंड पेशेंट्स एंड, तो मतलब वो काफ़ी टाइम अलग रहती थी हमारे से, बिकॉज जस्ट कि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो उस टाइम पे आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। मतलब सब घर पे थे, सब ऐसा होता था कि अब करना क्या है, क्योंकि क्लासेस जो हैं सब ऑनलाइन लगा के बैठ जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करना है, तो फिर उसमें हम कुछ ना कुछ फिगर आउट करते थे। तो ऑनलाइन वॉज गुड, मतलब एक्सप्लोरिंग के साइड में एटलीस्ट इट वॉज गुड। राइट। सो कॉलेज में फर्स्ट स्टार्टअप आइडिया वो कैसा है? और मोर देन दैट, आइडियाज आते हैं, राइट? एवरी आइडिया इज वर्थ $1 billion, वी ऑल नो दैट, बट एग्जीक्यूशन नहीं होता, राइट? सो
from where did you start executing? That is where most founders fail, right? I'll take you back to my old story only. तो जब मैंने ऐसा क्रिस्डो का कंटेंट देखना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग करता था, एक स्किल आती थी, ठीक है, मैंने कहा इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। क्रिस्डो का कंटेंट देखा, थोड़ा समझ में आया कि ब्रांडिंग कर सकते हैं। ब्रांडिंग में ही वाज लाइक कि आप डिज़ाइन एजेंसी शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आप कंसल्ट करना शुरू कर दो एक ब्रांड को। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए साथ में उनको एक लोगो वाला बंदा भी चाहिए होगा, समवन फॉर टू एसईओ के लिए एक बंदा चाहिए होगा, ठीक है, समवन टू राइट उसे क्या बोलते हैं, कैप्शंस, राइट, कैप्शंस लिखने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा। तो 3-4 लोग की टीम चाहिए होगी। ये सब लोग अलग अलग से वो अरेंज करते हैं। व्हाई नॉट आई ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड ये पैकेज की तरह उनको दे दूँ, ठीक है। सो ये आइडिया आया, टॉक टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो हमने ऐसा शुरू किया कि हाँ ठीक है, व्हाई नॉट डू दिस, ये शुरू किया। साथ साथ में फिर जैसे हर ब्रांड को जिसको हमने ऐसा करना शुरू किया, ऐसे मेरे पास 2 ब्रांड आ गए कि वीडियो एडिटिंग के लिए। जब मैंने ये शुरू किया तो ब्रांड बोलते हैं कि एक दिन किसी ने ऐसे रैंडमली पूछा, आप वेबसाइट भी करते हो क्या? हमको वेबसाइट चाहिए। मैंने कहा वेबसाइट क्यों चाहिए आपको? कह रहे कि हमारे यूट्यूब वीडियोस पे आते हैं लोग, व्यूज़ आते हैं, बट उसको रीडायरेक्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास, तो वेबसाइट चाहिए। मैंने कहा आप 1 हफ्ता दो मेरे को, मैं बताता हूँ आपको वेबसाइट को जैसा। तब तक मेरे प्लान में था कि यार मैं किसी को देखता हूँ जो वेबसाइट बना सकता है, उनको रेफर कर दूंगा इसको। तो मैंने ऐसे सर्च किया वेबसाइट है, वहाँ पे मुझे विक्स दिखा, ठीक है, और मैंने विक्स देखा, मैंने खुद एक्सप्लोर किया। अब वही ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकली मैं savvy था ही, तो 1-2 बार ऐसा क्लिक्स करके ट्राई किया एक्चुअली होता क्या है। वहाँ पे एक साइट पब्लिश हो गई, उसमें 3-4 इमेजेस ऊपर नीचे करी, तो दे वर लाइक कि हाँ ये तो इसको हम थोड़ा सा पैसा दे तो डोमेन पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। डोमेन्स एंड ऑल का मतलब वहाँ पे मैंने थोड़ा पढ़ा कि डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, DNS क्या होता है, ये सब किया। तो इन 1.5 days आई वाज लाइक आई कुड हैव, मतलब वहाँ पे वेबसाइट बनाना सीख लिया था, वेबसाइट को अपलोड करना सीख लिया था। मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो 5 दिन का मैंने वो दैट वाज सम प्रॉपर मेहनत। जो मैंने जेई के बाद जो एक बार मेहनत करी थी ना, वो 5 दिन मैंने मेहनत करी। 5 दिन मैंने विक्स के जितने वीडियो होते हैं ना पूरे इंटरनेट पर सब छान मारे, सब कर दिया। मैं कहा अब तो मैं बनाऊंगा वेबसाइट। मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने बोला, मैं कहा कौन सी वेबसाइट चाहिए आपको? कह रहा है ये होना चाहिए उस पर। मैं ठीक है, आपको स्टैटिक वेबसाइट चाहिए, उसमें ये चाहिए, उनको एक बैनर चाहिए था, नीचे एड्रेस आ जाए, मैप आ जाए। मैंने कहा ओके डन। डायरेक्ट कौन बनाएगा? मैं कहा हमारी एजेंसी बनाती है। फिर आपने एजेंसी खोली? हाँ एजेंसी खोली। फिर क्या नाम है? मैंने कहा नाम है वेबकाइट्स वेब सॉल्यूशंस। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय फर्स्ट स्टार्टअप, वेबकाइट्स वेब सॉल्यूशन। वहाँ पे हमने शुरू किया कि हम एक स्मॉल सर्विस तो दे ही रहे हैं वीडियो एडिटिंग की, व्हाई नॉट गिव द फुल एरे ऑफ ब्रांडिंग दैट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल सर्विसेज लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक एडिटिंग, ठीक है, ऐसा ही करके, और फोटो एडिटिंग से लेके उनकी वेबसाइट, फिर धीरे धीरे इसमें ऐड होते रहे। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप का जर्नी। तो जो ये बोलते हैं ना एग्जीक्यूशन, कुछ नहीं है भाई, मतलब आई थिंक उस टाइम पे जो आइडिया आता है ना मेरे को, मतलब आई वाज फॉर 19-20, ठीक है, अराउंड दिस। तो उस टाइम पे जो आइडिया आते हैं ना, मेरे हिसाब से तो यू शुड ऑलवेज, मतलब बी क्या बोलेंगे उसको, बी पेशेंट विद रिजल्ट्स बट बी अनपेशेंट विद एग्जीक्यूशन। मतलब वहाँ पे उस टाइम पे जोश भी होता है, हमारे पास सब कुछ होता है। अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आपके पास टाइम है एंड यू हैव अ गुड आइडिया, कैसा वो मैटर नहीं करता, फर्स्ट आइडिया कैसा भी होता मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। तो यू शुड गिव इट अ शॉट। फेल हो पास हो ना, आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते में आप इतना सीख लोगे जितना आप 1 महीने में या 1 साल में नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वो क्लाइंट को मेरी वेबसाइट पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट उस 1 हफ्ते में उस मोटिवेशन ने मेरे को एक वेबसाइट बनाना सिखा दिया, मेरे को DNS बनाना आ गया। उस चक्कर में मैंने अपना पूरा ब्रांडिंग का एक सूट खोल लिया, मैंने अपनी पूरी एक ब्रांडिंग एजेंसी खोल ली। दैट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ शिफ्ट, जो मैं अगर मैं खुद सोचने बैठता ना कि यार ऐसा करते हैं, एक वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी खोलते हैं, तो मैं कभी भी नहीं कर पाता वो चीज़। तो मेरा तो ये रैपिड एग्जीक्यूशन, फर्स्ट आइडिया के ऊपर रैपिड एग्जीक्यूशन करा था। फर्स्ट आइडिया रैपिड एग्जीक्यूशन, बी पेशेंट विद रिजल्ट्स, इम्पेशेंट विद आइडियाज, इम्पेशेंट विद एग्जीक्यूशन, उस पर पूरा जान लगाओ। फर्स्ट आइडिया आपका या तो आपको कुछ अच्छा देके जाएगा, नहीं तो बहुत अच्छी सीख देके जाएगा, दोनों में से एक चीज़। दैट इज माई थीसिस ऑन फर्स्ट आइडिया। राइट। मैं भी देखता हूँ कि ठीक है, हमारे जो साथ वाले जो स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं, आइडियाज़ आते हैं, बट उन्हीं आइडियाज़ में बहुत सारी आगे की जर्नी वो सोच लेते हैं, कि हाँ ये करूँगा, फिर फंडिंग उठाऊंगा, ये करूँगा, फिर कन्फ्यूजन होता है स्टार्ट कहाँ से करूँ अब। जो मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है, मैं चालू किया, लाइक ठीक है अब क्या करना है,
फिर धीरे धीरे एक फ्रेम टू एक फ्रेम जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं आ रही। तो इसमें फिर ये क्वेश्चन ये है कि आपने जो फर्स्ट अपना चालू की एजेंसी, ठीक है, उसमें लोग कितने थे? तो 2 ही लोग थे, मतलब अभी तो उसमें 3-4 लोग आ गए उसमें। शुरू तो मैंने अकेले ही किया था, शुरू में वीडियो एडिटिंग करता था, साथ में फिर एक दोस्त को ले आया था जो थोड़ा सा कैप्शन वैप्शन लिखना शुरू किया, उसने SEO को आता था, वो चीज़ करना शुरू किया। उसके बाद जो ये विक्स वाला वेबसाइट्स वाला शुरू किया, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे से हमारी ज़रूरतें बढ़ने लग गई ना, जैसे हमने लोगों को हायर करना शुरू किया, तो मुझे किसी ने फिर अप्रोच किया। ऐसे ही ना, इफ़ यू डू कीप डूइंग वर्क ना, तो आपके पास जो नया एक ब्रॉडर विजन है वो आता रहता है। तो आप जैसे मेरे को जैसे वीडियो एडिटिंग से पता लगा कि अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांडिंग, ब्रांडिंग से पता लगा देयर इज समथिंग कॉल्ड आपका एक वेबसाइट लैंडिंग पेज कुछ होता है, लैंडिंग पेज से पता लगा अच्छा लैंडिंग पेज के आगे कुछ कॉम्प्लेक्स लैंडिंग पेज होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर ही होते हैं, एप्लीकेशन ही होती है। तो वो मुझे नहीं आता था, कोडिंग तो मतलब अभी सीखनी शुरू करी थी, ठीक है, C++ ये सब का चल रहा था कोर्स हमारा। मैंने कहा आधा तो नहीं है, बट लोगों ने जैसे अब मैंने वेबसाइट्स, तो मैंने क्या किया, अपना जो वीडियो एडिटिंग वाला जो है ना जर्नी, उसको मैंने थोड़ा बोला कि ओके लेट्स पुट इट ऑन पॉज, बिकॉज बहुत टाइम जाता था वहाँ पे, एंड वेबसाइट्स फॉर फन, वेबसाइट जल्दी हो जाता था, ठीक है, और उसमें ज़्यादा किचकिच नहीं लगाते थे लोग कि यार ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो। वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ही होता था, बहुत ज़्यादा फीडबैक लूप जो था दैट वाज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक लूप वाज कि एक बार आपने दे दिया उसको, एक बार फर्स्ट आइटरेशन दिखाया, वहाँ पे जो चेंजेस हुए सेकंड आइटरेशन के बाद आप सबमिट कर दो, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग इसमें वेबसाइट मेकिंग में गए, यहाँ पे भी फिर किसी ने एक दिन पूछा कि यार आप सॉफ्टवेयर में आते हो क्या। मैं कहा अगेन हमारी वही ट्रिक, मैं कहा आप रुको एक हफ्ता रुको, एक हफ्ता में आपके पास आता हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार सॉफ्टवेयर भी एक बड़ा अच्छा हुआ है, सॉफ्टवेयर में तो और लंबा जो फीडबैक लूप जो होता है दैट इज़ मतलब वो और कम होता है सॉफ्टवेयर, एंड मार्जिन्स तो उसमें और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज समथिंग, मैंने कहा सॉफ्टवेयर की स्किल तो है नहीं अपने पास, किसके पास स्किल है। 2020 का टाइम था, 2020-21 में सबकी जॉब्स जो है वो आधी सैलरी पे चल रही थी या 1/4 सैलरी पे चल रही थी। तो मैंने हरिद्वार से ही मैंने ऐसा सर्च किया वीडियो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके, तो ना एक भैया का निकल के आया वहाँ पे कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, वो जॉब करते थे, ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया, लाइक हाँ हाँ जॉब करते हैं। मैं कहा क्या चल रहा है आपका, कह रहे अरे 1/4 सैलरी पे रखा हुआ उन्होंने, और हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी कंपनी पॉलिसी है, ये पीछे से ही आया है, सबको ऑर्डर आया है कि ऐसा करना है। सर ऑल राइट। मैं कहा व्हाट वील डू इज आई विल ऑफर यू दिस वन प्रोजेक्ट, ठीक है, वी विल डू सम प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है, आई विल बी द फेस ऑफ द कंपनी एंड मैं कंसल्ट करूँगा, आप सॉफ्टवेयर बना देना। लाइक ठीक है मैं 1-2 दिन में बताता हूँ। और उन्होंने पूरा रिक्वायरमेंट समझा, लाइक हाँ कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे करके हमने अपना फर्स्ट को अटेंडेंस सॉफ्टवेयर एक स्कूल के लिए बनाया था, ठीक है। हमने वो बनाया एंड अच्छा वो जो क्लाइंट थे वो बहुत अच्छे थे। अच्छे क्लाइंट यही होते हैं कि ना जो आप अच्छा काम कर दो ना, दे रेफर यू टू पीपल, ठीक है। सो दे रेफर्ड मी टू एक्चुअली सम पीपल कि हाँ ही मेक्स गुड सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग। सो वंस ही डिड दैट आई गॉट 2-3 मोर लीड्स कि सॉफ्टवेयर के लीड्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड जैसे से वो लीड्स आने शुरू हुए, मेरा सॉफ्ट तो देन आई स्विच फ्रॉम वेबसाइट टू सॉफ्टवेयर। तो अभी हमारा पूरा का पूरा जो टीम है वहाँ पे, मतलब वो जो एक भैया थे उनको ऑन बोर्ड कर लिया, उनके साथ एक और कलीग थे वो भी ऑन बोर्ड आ गए। तो हमारी पूरी जो टीम है 4-5 लोगों की टीम है, एंड नाउ वी जस्ट डील इन सॉफ्टवेयर। तो अभी वो चीज़ चलती है हमारी, दैट इज़ आवर होल टीम, 4-5 पीपल। So you started as video editor and अब सॉफ्टवेयर कर रहे हो आप। जो एक पिवटल रोल है, मतलब हर एक स्टार्टअप की जर्नी का यही रहता है दैट यू नीड टू ऑलवेज पिवट। इट्स रूल नंबर 1। ये जो मतलब दिस आइडिया इज नॉट पर्टिकुलरली एन इनोवेटिव वन, इट वाज जस्ट कि आप कितना वैल्यू, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है ना कि देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड एट दैट टाइम, ठीक है। सब बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना था। तो हमारा हमने जो पिच रखी ना वो वैसी रखी कि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो कंपनी है, उसको हम ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाएंगे। उसमें जो भी चाहिए आपको, आप अगर रेस्टोरेंट तो आपको स्विगी ऑनबोर्डिंग चाहिए, जोमेटो ऑनबोर्डिंग चाहिए, हाँ आपको एक ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम चाहिए, ठीक है। आप अगर स्कूल हो तो आपको अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, ठीक है। आप अगर स्कूल हो तो आपको असाइनमेंट कैसे भेजे बच्चों को वो चाहिए, सिस्टम चाहिए, ठीक है। आपको सोशल मीडिया करवाना है, तो ये सब के सब हमने पूरा वाइड एरिया ऑफ सर्विसेज हमने सही टाइम पे शुरू कर दिया। तो आई वुड से आई गॉट लकी कि उस टाइम में पैंडेमिक चल रहा था, सब ऑफलाइन बंद हो गया, तो ऑनलाइन का एकदम बूम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो गया। तो मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल कम एक्सपीरियंस वाले थे, वी कुड ऑल्सो एंटर अ इंडस्ट्री
और वहाँ पे हमने एस्टेब्लिश कर पाया अपने आप को, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता। वो डिमांड बहुत ज़्यादा, डिमांड सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, तो वहाँ पे हम जैसे लोग आ पाए। एंड वहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आया ना, देन आई सॉ दैट कि हाँ यहाँ पे गैप है, ठीक है। दैट इज़ वेयर आई कैपिटलाइज ऑन दैट। एंड जो फुल टीम है वो अभी मतलब इट इज़ एन इवॉल्वमेंट। अगर हम वहाँ पे अटके रह जाते हैं ना कि ठीक है वीडियो भी करते रहेंगे, वहाँ पे भी हम वो कर सकते थे, बट दैट वाज समवेयर विच आई वाज डूइंग, ठीक है। मेरे को हमेशा एक माइंडसेट रहता है कि हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू द क्लाइंट, ठीक है ना। अगर आप देखोगे वीडियो से जो जंप हुआ मेरा स्क्रिप्टिंग एडिटिंग ये सब पे, उसके बाद फिर जो जंप हुआ वेबसाइट से जंप हुआ सॉफ्टवेयर पे, जो ये इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन कि अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, देन दैट इज़ व्हाट आई एम फॉरवर्ड टू। सो वीडियो से जो सॉफ्टवेयर की जो जर्नी है, इट वाज जस्ट दैट कि कितना वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और हाउ एफिशिएंटली कैन वी प्रोवाइड दैट वैल्यू फॉर विच इज़ वायबल फाइनेंशियली ऑल्सो, सस्टेनेबल ऑल्सो फॉर आवर स्टार्टअप ऑल्सो, एंड टू द इंडस्ट्रीज वहाँ पे। तो हरिद्वार में देर इज़, मैं हरिद्वार से हूँ बाय द वे, तो मेरी वहाँ पे एक सिडकुल करके एरिया है। सिडकुल इज़ अ इंडस्ट्रियल एरिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज वहाँ पे वो नीड्स वेबसाइट लाइक वेबसाइट्स, एंड उनको वेबसाइट से आगे सॉफ्टवेयर चाहिए थे। सो वो चीज़ आइडेंटिफाई करी, एंड वहाँ से वो चेन बननी शुरू हो गई कि ठीक है वैल्यू एडिशन कहाँ तक कर सकते हैं हम। तो सॉफ्टवेयर इज़ द पिनाकल ऑफ वेयर यू कैन ऐड वैल्यू टू दिस। अभी हम सोच रहे हैं यहीं पे क्या करें। So that is the journey. We hope you liked this part of the episode. The next part would be releasing on 5th of November. Till then, subscribe to Launchcast and follow us on Instagram.